Hello everyone, how are you all doing? Welcome back to Vedantu Punjab's learning platform. We are back with another video and as we have discussed earlier कि हम लोग पहले poetry section को complete कर रहे हैं. So I am back with another poem that is Not Marble Nor the Gilded Monuments, which is written by William Shakespeare. अब जो ये वाली poem है, it is comparatively different than any other poem. How? Because it is a sonnet. So जो शेक्सपियर है, you know, he's like the father of English literature. So he in total wrote 154 sonnets. तो आज हम अपनी पोइट्री में जो ये करने वाले हैं, this is sonnet number 55. So out of those 154 sonnets that he wrote, आज हम 55th जो sonnet है वो करने वाले हैं. Now you people must be thinking कि पोम को सोनेट क्यों बोल रहे हैं, या फिर इसको अगर ये पोइट्री सेक्शन में इंक्लूडेड है, व्हाई इज इट नॉट कॉल्ड अ पोम, राइट? सो बिफोर वी स्टार्ट विद आवर एक्चुअल पार्ट, हमें ये भी समझना जरूरी है कि व्हाट एक्चुअली इज अ सोनेट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सोनेट एंड अ पोम. सो लेट्स गेट इनटू इट. Now, before we start, let's read a little about William Shakespeare. So, as you people know already, William Shakespeare was an English poet, playwright, actor, widely regarded as the greatest writer in English language and the world's greatest dramatist. He is considered as the father of the English literature. So he is known to be the most valued and well-known person of English literature, English language. Reason being, उन्होंने इस depth में चीज़ों को लिखा है that it is very difficult sometimes when you are reading the work of Shakespeare, it gets very difficult to understand. Reason being, वो इतनी डेप्थ में जाके चीज़ें लिखते थे कि हर कोई उन चीज़ों को समझ नहीं पाता. So you need very detailed explanation to understand a few verses written by William Shakespeare. Now, what is a sonnet? The main thing, a sonnet is a poetic form which originated in Italy. Now, the term sonnet is derived from the Italian word sonetto. Sonetto से जो word है sonnet उसको उठाया गया है. तो यहाँ पे sonetto का मतलब होता है छोटी सी poem. अभी sonetto is a poem, जो हमारी sonnet है वो भी एक poem है. The main difference is, जब हम कोई poem लिखते हैं तो there is no particular structure. आप it doesn't matter अगर वो लास्ट में rhyme कर रहा है या नहीं कर रहा है, it doesn't matter. कोई उसका proper एक फिक्स्ड एक स्ट्रक्चर नहीं होता है विच इज़ मैंडेटरी टू फॉलोड. मतलब यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू हैव अ राइमिंग स्कीम, या फिर ऐसा आपको कुछ पर्टिकुलर नहीं दिया होता है कि आपको फॉलो करना है. However, when you are writing a sonnet, तो you have to follow a very strict rhyme scheme. आपको वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है. Another major part is जो हमारा ये है, it sticks to how many lines? 14 lines. This poem has to be of 14 लाइन्स. ये सिर्फ 14 लाइन्स में ही आपकी कंप्लीट हो जाती है. एंड इट फॉलोज अ स्ट्रिक्ट राइम स्कीम एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. एक प्रॉपर राइम स्कीम होगी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा जिसमें ये पोम लिखी जाएगी. सो दिस वाज इट अबाउट द लिटिल इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स गेट इनटू आवर एक्चुअल वर्ड्स. अभी ओके, क्वाट्रेन क्या होता है? तो ये जो हमारी 14 लाइन्स है ना, इनको कुछ क्वार्ट्रेन्स में, कुछ कपलेट्स में डिवाइड किया गया है. सो व्हाट इज अ क्वार्ट्रेन? क्वार्ट्रेन 1 इज दिस, जहाँ पे आपको पोम की फर्स्ट 4 लाइन्स बताई जाती हैं. व्हेन द पोम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 लाइनों का एक एक पार्ट जब हम बना देते हैं उसको क्वार्ट्रेन बोलते हैं. सो दिस इज आवर क्वार्ट्रेन नंबर 1. सो इसमें शेक्सपियर बोल रहे हैं, Not marble nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme, but you shall shine more bright in these contents than unswept stone besmirred with sluttish time. So here are some difficult words also that I have written. साथ ही में आप लोग रीड कर सकते हो. We'll get directly to the explanation, so आपको ये exactly समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे इन फर्स्ट कुछ लाइन्स में the poet says कि जो piece of poetry है, something that he has written, something which is a part of art, वो ज़्यादा टाइम तक जिएगा. मतलब rather than a monument that has been built by anyone, regardless of who has built a particular monument, उससे ज़्यादा क्या चीज़ लास्ट करेगी? Something that has been written in someone's memory, for someone's love, something that has been written, जो चीज़ आपने आर्ट की फॉर्म में लिखी है वो ज़्यादा लंबी टाइम तक लास्ट करेगी. The poet says that
this piece of poetry will remain alive longer than those stone statues and gold plated monuments. अब यहाँ पे marbles हैं हमारे stones. गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है वो वाले मॉन्यूमेंट्स जो एकदम कवर्ड विद गोल्ड, गोल्ड से प्लेटेड होते हैं. जैसे अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, इट इज़ ऑल्सो, उनके ऊपर भी तो इट इज़ ऑल्सो गोल्ड प्लेटेड, सो इट इज़ ऑल्सो गिल्डेड मॉन्यूमेंट, इट इज़ ऑल्सो अ गिल्डेड मॉन्यूमेंट. तो वो ये बोल रहे हैं कि जो ये मॉन्यूमेंट्स, गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स और मार्बल से बने हुए हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो रॉयल मैन ने बनाए हैं. नाउ हैव यू एवर थॉट, एक जो पुराने, हम जैसे मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, पुराने एम्पायर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स क्यों कंस्ट्रक्ट करवाए होंगे. जैसे कोई भी दरवाज़ा है ना, कोई भी, जैसे वो बुलंद दरवाज़ा हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे उन्होंने ऐसे कासल्स बनवा दिए, कुछ ना कुछ महल बनवा दिया, ऐसे कुछ कर दिया. तो व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड दैट? So the royal men, they used to build statues and monuments so that they become immortal, so that their name could be written in the pages of the history. Whenever people, whenever जो आगे वाली अपकमिंग जनरेशन है, जब भी वो हिस्ट्री को या आर्ट को पढ़ेगी, तो उनके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि ओह ठीक है, उस राजे ने, उस महाराजा ने ये चीज़ बनवाई थी. सो इन ऑर्डर टू बी इमॉर्टल, अमर हो जाना, इमॉर्टल इज अमर हो जाना, अमर हो जाने के लिए एंड टू बी लास्टिंग इन पीपल्स मेमोरी, उन्होंने ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवाई एंड आर रिमेंबर्ड बाय द फ्यूचर जनरेशन. ऑब्वियसली अब देखा जाए टेक्निकली तो हम भी तो पढ़ ही रहे हैं, पीपल स्टिल गो एंड विजिट ताजमहल, हम आज भी बहुत पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए जाते हैं. सो दिस वाज द सोल पर्पस, ताकि वो इमॉर्टल हो जाए एंड लोग उनको बहुत बहुत टाइम तक याद करें. दैट वाज देयर मेन पर्पस विच इज सर्व्ड. सो जो पोइट के बिलव्ड हैं, जो जिनके लिए पोइट ने ये पूरा वर्स, ये पूरी पोम जो है वो लिखी है, सोनेट लिखी है, इज रेफर्ड टू एज यू हियर. यहाँ पे नो नेम इज मेंशन्ड, नो पर्टिकुलर जेंडर इज मेंशन्ड. विलियम शेक्सपियर ने, जो हमारे पोइट हैं, उन्होंने अपने बिलव्ड को किस चीज़ से रेफर किया है यहाँ पे? यू. बट यू शैल शाइन, यू इज द पोइट्स बिलव्ड हियर. एंड वो ये बोल रहे हैं कि चीज़ें आएंगी, चीज़ें जाएंगी, मॉन्यूमेंट्स बनेंगे, मॉन्यूमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा, बट यू माई बिलव्ड, यू माई डियर, यू विल शाइन थ्रू आउट ऑल दिस, यू विल बी रिमेंबर्ड थ्रू दिस पावरफुल पोइट्री. नाउ दैट आई हैव मेंशन्ड यू इन माई वर्क ऑफ आर्ट, पीपल विल रिमेंबर यू फॉर एवर. आपको कभी कोई भूलेगा नहीं. मतलब मॉन्यूमेंट्स आएंगे, कुछ ना कुछ होगा ऐसा, कुछ मिसहैप होगी, कुछ भी होगा, एंड ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, बट वॉट विल रिमेन एंड वॉट विल लास्ट फॉर एवर इज समथिंग दैट आई हैव रिटन फॉर यू. तो उस तरीके से उसने अपने आप को भी इमॉर्टल कर लिया एंड अपने बिलव्ड को भी अपने साथ इमॉर्टल करवा लिया. सो ही इज सेइंग दैट यू शैल बी रिमेंबर्ड थ्रू दिस पावरफुल पोइट्री. अब वो किन से उनको कंपेयर कर रहा है? अपने बिलव्ड को, मतलब उसके लिए जो उसका प्यार है ना, मतलब जो भी है, अपने जो उसकी अफेक्शन है, वो कंपेयर कर रहा है उसको स्टैचूज के साथ. कौन से स्टैचूज? जो अनस्वेप्ट हैं. अनस्वेप्ट एज इन कि a stone monument which is left uncared, जिसके ऊपर मिट्टी धूल जम जाती है. Have you ever seen any videos? There is this girl on YouTube. I don't remember her name. What she does is she cleans graves of the people. जो unswept graves होती हैं वो उनको clean out करती है. तो वो graves जहाँ पे कोई visit नहीं करता, there are no flowers, nothing, they haven't been cleaned and no one visits them, तो वो unswept हो जाता है. मतलब they passed away and people have forgotten them. Their families, their friends, they are known to, they have all forgotten that particular person. तो वो यही बोल रहे हैं कि वो स्टैचूज़ जो कभी ना कभी निगलेक्ट हो जाएंगे, वेयर आउट हो जाएंगे. यहाँ पे बिस्मिर्ड का मतलब होता है टार्निश हो जाना, ख़राब हो जाना. जैसे होती है ना कि कोई चीज़, जैसे कोई भी मेटल है, उसके ऊपर टार्निशिंग होने लग जाती है, जंग लग जाती है, वो कोरोजन सी हो जाती है. तो वो ये बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है ये तो ख़राब हो जाएंगी, ये जो है ये वेयर आउट हो जाएंगे, बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो क्या एक ऐसा एलिमेंट है जो ये बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स को खराब कर देगा? दैट इज टाइम. द रीजन दैट द टाइम हैज बीन कॉल्ड स्लटिश हियर. स्लटिश का मतलब होता है अनक्लीन हैबिट्स या बिहेवियर. मतलब
टाइम को एक ऐसा रेफरेंस यहाँ पे कंसिडर किया गया है कि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे करके चीज़ों को, मतलब वी हैव नोन दैट टाइम इज सपोज टू हील समथिंग, बट यहाँ पे टाइम को एक ऐसा रेफरेंस माना गया है कि टाइम के साथ साथ वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। द द मोमेंट द टाइम विल पास, जैसे जैसे स्लोली एंड स्टेडीली टाइम पास होता जाएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि ये चीज़ें खराब हो जाएंगी, लोग इनको भूल जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड, समथिंग दैट आई हैव रिटन इन द मेमोरी ऑफ समवन आई लव्ड, दैट विल रिमेन फॉर एवर। वो चीज़ कभी खत्म नहीं होगी, उसको कभी कोई नहीं भूलेगा। सो यहाँ पे स्लटिश टाइम का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़, मतलब टाइम एज एक ऐसा एलिमेंट कंसिडर किया गया है जो चीज़ों को खराब कर देगा धीरे धीरे। वो बहुत ही परफेक्शन के साथ कोई चीज़ जो बनी है उसको भी वो विद टाइम ग्रेजुअली खराब हो जाएगी। सो द पोएट सेज द पोएट्री विल रिमेन शाइनिंग एंड फ्रेश एज एवर। इवन जब वो स्टैचूज निगलेक्टेड हो जाएंगे, उनके ऊपर कोई नहीं आएगा, वो वेयर आउट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, टार्निश हो जाएंगे, एंड ड्यू टू द स्लटिश टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, still the poetry will remain shining and fresh as ever. Through the poetry, the poet's beloved will also shine for all the times to come. तो अभी सिर्फ उतने टाइम के लिए नहीं पोइट की बिलव्ड शाइन कर रहे हैं, द पोइट्स बिलव्ड विल शाइन जितना टाइम तक कि आगे ज़माने आने वाले हैं, अप टिल द लास्ट जनरेशन दैट विल सी द अर्थ। तो वो सब पोइट के बिलव्ड को याद करेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव आवर क्वार्टराइन नंबर 2। अब इसमें जैसे पुराने उसमें क्वार्टराइन नंबर 1 में दे हैव मेंशन्ड अबाउट मोर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। वहाँ पे टाइम एक ऐसा एलिमेंट है, यहाँ पे दे हैव मेंशन्ड कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चीज़ें खराब कर देती है ना। जैसे व्हेन वेस्टफुल वॉर शेल स्टैचूज ओवरटर्न एंड ब्रॉयल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मेसनरी, नॉर मार्स his word, nor war's quick fire shall burn the living record of your memory। तो अब वो यहाँ पे बोलने की ट्राई कर रहा है, पोइट हमें यहाँ ये बता रहा है कि जो वॉर्स हैं, यहाँ पे उसने वेस्टफुल वॉर बोला है, जो वॉर्स हैं दे आर टोटली अ वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग। वॉर्स आर वेस्टफुल as they destroys the statues which were built by the royal men and undo the skilled work of masons। जो masons है वो बहुत ही एक they are very skilled। It takes a lot of skill and talent and obviously a lot of effort to create something as huge as like Taj Mahal या फिर any other monument that has been built so far। तो उन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो मेजन्स का कितना ज़्यादा हार्ड वर्क लगा होगा। अब वो सारे वर्क को अंडू कर देना, खत्म कर देना, बिल्कुल ही रूइंस में चेंज कर देना, हु डज दैट? दैट इज द वर्क ऑफ वॉर्स। तो वो सारा काम जो खराब है वो कौन कर देता है? वॉर्स। वॉर्स आर मेंट टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड रिगार्डलेस ऑफ, मतलब वो चीज़ किसने कंस्ट्रक्ट करवाई है, किसने बिल्ड करवाई है। वॉर्स आर अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शंस। वॉर्स जो है दे कॉज डिस्ट्रक्शन, वो डिस्ट्रक्शन अपने साथ लेके आती हैं। तो वो ये बोल रहा है कि वो जो भी मेजन्स का वर्क है, ब्रॉयल रूट का मतलब है, ब्रॉयल का मतलब होता है डिस्टर्बेंसेस। सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, नंबर 1 इज वॉर, एक तो वॉर्स हैं, दूसरी डिस्टर्बेंसेस जो इंटरनली डिस्टर्बेंसेस वगैरह क्रिएट होती हैं, है ना। अब यहाँ पे डिस्टर्बेंस अर्थक्वेक नहीं है, डिस्टर्बेंसेस एज इन जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, है ना। तो वॉर की वजह से, वॉर में जो भी डिस्ट्रक्शंस होती हैं वो चीज़ें, एंड दे वर्क ऑफ मेजनरी, मतलब जो मेजन्स ने मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए हैं। तो वो ये अब बोल रहा है कि वॉर की वजह से इन सब चीज़ों में डिस्टर्बेंस होती है, जो बिल्कुल बेसिक एक चीज़ चलती आ रही होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे मार्स हिज स्वॉर्ड, अब यहाँ पे दिस पोइट्री, सॉरी, सच फाइट्स आर डिस्ट्रक्टिव। Now why are they destructive? Because they destroy the great monuments and उनको ruins में convert कर देते हैं। इतने बड़े बड़े monuments जो masons ने बनाए हैं, जो बड़े बड़े kings ने बनवाए थे, बड़े बड़े रूलर्स ने बनवाए थे, they have the power, the war it has the power to like change everything into a ruin। वो completely उसको destruct कर देती है, destroy कर सकती है, उसमें इतना ज़्यादा जो है power है। Next, this poetry that has been written in the memory of the brave man that not even Mars, यहाँ पे Mars कौन है? The god of war।
जो हम जैसे एसोसिएट करते हैं ना अलग अलग भगवान को अलग अलग कैटेगरी के साथ, जैसे सरस्वती माता होते हैं, वो पढ़ाई के लिए उनको माना जाता है, लक्ष्मी माता को माना जाता है फॉर द मनी एंड प्रॉस्पैरिटी। सिमिलरली विष्णु भगवान होते हैं जो है ना, उनको हम पानी और इन सब चीज़ों से, आई एम सो सॉरी इफ आई एम सेइंग इट रॉन्ग, बट मतलब हम अलग अलग चीज़ों से एसोसिएट करवाते हैं उनको, राइट। तो सिमिलरली जो मार्स है, ही इज नोन टू बी द गॉड ऑफ वॉर्स। तो वो ये बोल रहे हैं दैट द पोइट्री हैज बीन रिटन इन द मेमोरी ऑफ द ब्रेव मैन। उस ब्रेव मैन की मेमोरी में ये चीज लिखी हुई है, जो खुद मार्स जो गॉड है वॉर के, वो भी उस चीज को खत्म नहीं कर सकते हैं। मतलब उसमें इतनी पावर है, जो समथिंग दैट हैज बीन रिटन बाय द पोइट फॉर हिज बिलव्ड इन फॉर्म ऑफ आर्ट, इन फॉर्म ऑफ पोइट्री, राइम, ये सब चीजों में उसने लिखा है, उसको खुद मार्स द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, द गॉड ऑफ वॉर भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और वॉर्स स्पीडी फायर्स शेल डिस्ट्रॉय। अब वेन एवर देर इज अ वॉर, तो हर चीज़ होता है ना बहुत स्पीड से फैल जाती है। अब जैसे यू मस्ट हैव सीन द केस ऑफ अमेजन फॉरेस्ट फायर्स, है ना। तो वो यहाँ एक जगह पे फायर स्टार्टेड एंड वो बहुत जगह, पूरी जगह पे फैल गई। तो वही वो बोल रहे हैं कि चाहे वो चीज़ें, वो स्पीडी फायर इधर उधर जहाँ पे भी फैल जाती है, कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पे आकर के उसकी जो उसने अपने बिलव्ड के लिए लिख दिया है, जो आर्ट उसने क्रिएट कर दी है, उसको खत्म कर दे। It will survive through all the wars. Now, what is that one thing that will survive the wars? Will it be the monuments? No. Will it be something that has been written? Yes. तो जो चीज़ पोइट ने अपने जो अपने बिलव्ड है उसकी मेमोरी में उसने लिख दी है, वो चीज़ विल सर्वाइव द वॉर्स, नथिंग एल्स विल। मॉन्यूमेंट्स तो रूइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई भी आके बचा नहीं पाएगा। इवन द गॉड ऑफ मार्स अगर वो ट्राई करे, पर वो खुद भी मिलके पोइट की जो राइटिंग है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नेक्स्ट अप क्वार्टरी नंबर 3, यहाँ पे दिस इज against death and all oblivious enmities shall you pace forth, your praise shall still find room even in the eyes of all posterity that wear this world out to be ending doom। अब यहाँ पे against का मतलब against था, I've told you। oblivious enmity, enmity is जैसे हमारे जो enemies होते हैं, तो यहाँ पे वो हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दीज लाइन्स शेक्सपियर डिक्लेयर्स दैट हिज बिलव्ड, someone that he loved, someone that he has written for, जो आर्ट उसने लिखी है, will live on forever, वो हमेशा जिएंगे through the power of his poetry, उसकी पोइट्री के साथ। his poetry is that one tool which will let his beloved survive all this time। मतलब वो इतना लंबा पूरा, मतलब जब तक दुनिया रहेगी तब तक अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं, द मेन रीजन इज बिकॉज द पोइट हैज रिटन, द पोइट हैज इंडल्ज्ड हिज आर्ट इन इट, उसने अपने आर्ट को वहाँ पे इंक्लूड किया है। तो वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। एनमिटी विच इज फॉरगेटफुल ऑफ एवरीथिंग एंड सो सीक्स टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी एक ऐसी चीज, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसी दुश्मन जो जिस चीज को वो सही देख लेगी उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ऑब्लिवियस एनमिटी इज समथिंग दैट इज टेंड टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट इट सीज। मतलब जो भी उसके आसपास में है, जो उसके सामने आ रहा है, वो उसको रुइंस में कन्वर्ट कर देगी, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगी, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन इट विल कॉज। सो अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं बट नीदर डेथ, ना तो डेथ, नॉट द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ टाइम विच मेक्स ऑल द थिंग्स फेड इनटू ऑब्लिवियन कैन इरेज द बिलव्ड्स मेमोरी। अब वो ये बोल रहा है फिर चाहे वो कोई भी दुनिया की पॉसिबल चीज आ जाए, you talk about the god of war Mars, he can't destroy it. You talk about time, the main sluggish time, the main element जो हर चीज को खराब कर देता है, वो भी उसको टार्निश नहीं कर पाएगा, उसको खराब नहीं कर पाएगा। So every possible thing which is tend to destroy all the materialistic things, वो पोएट्री को, वो पोएट के वर्क को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब पोएट के वर्क का डायरेक्ट मतलब क्या है? पोएट की बिलव्ड की मेमोरीज। तो वो ये बोल रहा है कि कोई भी चीज हो, कोई भी एलिमेंट आ जाए, वो मेरे वर्क को, दैट इज मेरे बिलव्ड की प्यारी मेमोरीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। देन थ्रू द वर्सेस ही हैज रिटन द बिलव्ड विल कंटिन्यू टू पेस फोर्थ
पेस फोर्थ मतलब आगे चलता जाना, यू शेल पेस फोर्थ मतलब out of all these things that will keep happening in the world, nothing will be able to stop it. कुछ उसको उसकी मेमोरीज को कुछ रोक नहीं पाएगा, वो दुनिया में आगे बढ़ता जाएगा, मूव फॉरवर्ड इन टाइम as generations will come and go. generations आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी. अब can you imagine शेक्सपियर ने ये कब लिखा होगा, एंड वी आर लाइक कितने टाइम बाद, डेकेड्स है ना, मतलब years के बाद की generations हैं हम, एंड फिर भी हम सेम चीज़ पढ़ रहे हैं. मतलब it is actually true. It has been like thousands of years since Shakespeare must have written this, and after all these years we are still reading it. The things that he has written for his beloved, they are still alive. आज भी तो हम वही पढ़ रहे हैं ना. So then it says people of all future ages will find space to admire and praise the beloved's beauty. Posterity का मतलब है future generation. तो वो ये बोल रहे हैं कि even in the eyes of all posterity, future generations जो हैं, जो आगे हमारी अपकमिंग जनरेशन्स हैं, वो भी आके ये चीज़ को एडोर करेंगी, एडमायर करेंगी. किसको एडोर करेंगी? हम लोग किसको एडमायर करेंगे? पोइट के बिलव्ड को, समवन दैट द पोइट लव्ड, समवन दैट ही रोट फॉर. हम भी आके उनको एडमायर करेंगे, उनकी प्रेज करेंगे. People of all future generations will find a space to admire and praise the beloved's beauty and virtue, even as the world itself grows old and moves towards its final end. अब यहाँ पे what is ending doom? Ending doom is like the doomsday. Doomsday is the final day. जब हम बोलते हैं when the day will come, when actually भगवान नीचे आएंगे, and that will be the day when he will have a checklist of all the evil things we did, of all the goods and of all the bads that we have done. किसने कितनी अच्छी और बुरी deeds करी हैं, he will have the record of everything. तो हम बोलते हैं ना कि death से पहले जब यमराज आएंगे तो he will have a checklist of all those things. So that is what doomsday is. The day on which the last judgment will occur. जब लास्ट में लास्ट डे होगा अर्थ पे, एंड जजमेंट आएगी, मतलब देखा जाएगा कि कौन किसने कितने अच्छे काम किए, किसने कितने बुरे काम किए. तो ही सेज कि जो वर्ल्ड है वो बूढ़ा होता जाएगा, द वर्ल्ड विल ग्रो ओल्ड एंड मूव टुवर्ड्स इट्स फाइनल एंड, एंड अपने लास्ट दिन तक पहुंच जाएगा. द लास्ट डे इज द डूम्सडे, दैट इज द एंडिंग डूम. So यहाँ ये वाला quadrant was very important because you have to make sure that it is there in your mind कि लास्ट डे, टिल द लास्ट डे, लास्ट जजमेंट डे तक भी कौन अलाइव रहेगा? द मेमोरीज ऑफ द पोएट्स बिलव्ड. एंड हु विल सर्वाइव एवरीथिंग? जो भी डिस्ट्रक्शंस होंगी, जो भी कैलामिटी होगी, कुछ भी होगी, हु विल सर्वाइव दैट? द पोएट्स बिलव्ड. लास्ट क्वार्ट्रेन जो हमारा था, दैट इज अ कपलेट. नाउ कपलेट इज 2 लाइन्स. कपलेट किसको बोलते हैं? 2 लाइन्स के वर्ड्स को कपलेट बोल देते हैं, जिसमें भी अगेन इट हैज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट राइमिंग. जैसे यहाँ पे यू विल सी अराइज एंड आइज, जो लास्ट के 2 वर्ड्स होंगे दे हैव टू बी राइमिंग, एंड इट इज ऑफ 2 लाइन्स. इट इज जस्ट ऑफ 2 लाइन्स, राइट? तो अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? So till the judgment that yourself arise, you live in this and dwell in lover's eyes. Now this is very important. यहाँ पे poet बता रहा है, finally the poet declares that the beloved will remain alive in his poem until the judgment day. Until the judgment day, why? मतलब उसने अपने आप से ही एक ending बता दी. Judgment day पे ऐसा क्या होगा? When the dead will arise out of their graves. जो जैसे zombies होते हैं वो उठ जाते हैं अपनी ग्रेव से. तो इट इज सेड दैट ऑन द लास्ट डे ऑफ जजमेंट, जब खुद भगवान जो है वो नीचे आएंगे, उस दिन पीपल विल एक्चुअली कम आउट ऑफ देयर ग्रेव्स. तो ही सेज व्हेन डेड विल अराइज एंड आउट ऑफ देयर ग्रेव्स, एंड जीसस क्राइस्ट विल डिसेंड ऑन द अर्थ टू जज देयर एक्ट्स. तो दैट वुड बी द लास्ट डे, जब खुद जीसस क्राइस्ट नीचे आएंगे, एंड ही विल हैव द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल एंड ऑल देयर एक्ट्स. That is when it would be the last day. क्योंकि तब तो दुनिया खत्म हो जाएगी ना. If he is saying that his beloved will also come out of the grave and that would be the last day, it will be the last day for everyone. तो दुनिया में कोई survive नहीं करेगा. जब तक लोग survive कर रहे हैं तब तक his art is alive. The memories of his beloved are alive. Once the world ends, that is when the memories will end. तब वो चीज़ fade away होगी, उससे पहले नहीं होगी.
So he says till the last day of judgment, when his beloved will arise out of his grave, he will remain alive through this poem. तब तक, जब तक लास्ट डे नहीं आ जाता, they will remain alive. Until that, तब तक, उस divine moment तक, the beloved will live eternally. Eternally as in till the last, मतलब जिसका कोई end नहीं है, अमर type हो जाता है जो. Within these verses and in the hearts and eyes of all true lovers who read them. Now he says that ये जो उसने words लिखी है, ये जो उसने एक बहुत ही प्यारी सी लाइंस लिखी हैं, उसने एक राइम बनाई है, तो ये जो राइम है ये पूरा टाइम जिंदा रहेगी. तुम जियोगे, you live in this, you as in the poet's beloved. So he's saying कि you will also live through all this, and also you will be alive in whose eyes? In the eyes of the people who are true lovers. The someone who is truly in love, उसकी आंखों में the person who is actually in love now will be able to relate to this poem. कि बाकी दुनिया का कुछ नहीं आता पता, बस someone that I love, someone I have written for will be alive, will remain eternally alive. वो तो बिल्कुल अमर है, that will have no end. Ever since, ever till the time, जब तक ये दुनिया रहेगी, दुनिया जहाँ रहेगा, तब तक the beloved's memory will be there. So this was it. हमने हमारे क्वार्टरेंस भी हो गए, हमने ये कपलेट भी कर लिया. दिस इज हाउ द पोम एंड्स. उसने अपने जो सोनेट है उसकी एंडिंग ऐसे करी है. सो नाउ वी विल गेट टू द क्वेश्चन पार्ट्स. अब यहाँ पे कुछ मैंने 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस उठाए हुए थे, 1-2 लॉन्ग क्वेश्चंस उठाए थे जो मैंने कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में देखे थे. सो लेट्स कवर देम अप. एक ही साथ कवर अप कर लेंगे, इट विल बी बेटर. व्हाई? बिकॉज थोड़ा फ्लो बन जाता है. बट बिफोर दैट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द थीम एंड message of the sonnet, the poem. So the central theme is immortality of beauty and love through poetry. Out of all those things that exist today, सबसे ज़्यादा अमर रहने वाली चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा immortal चीज़ क्या है? The beauty and love. Immortality of beauty, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि जो उसका beloved है, that is like उसकी जो ब्यूटी है, उसके जो उसके साथ प्यार है, जो लव है, दैट हैज नो एंड, दैट सीज नो एंड, नो लिमिट्स, नथिंग. शेक्सपियर बिलीव्स दैट टाइम, वॉर एंड डेथ, अब ये जो 3 चीजें हैं, दे आर द मेन रीजंस, दे आर द मेन डिस्ट्रक्टिंग फैक्टर्स. तो वो ये बोल रहा है कि ये जो डिस्ट्रक्टिंग फैक्टर्स है ना, टाइम, वॉर और डेथ, ये जो चीज़ें हैं, ये मटीरियलिस्टिक मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मतलब कोई चीज़ जो अभी बनाई है, टाइम के साथ करोड हो गई, खराब हो गई, कहते यार ये तो उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है. अब डेथ आएगी, एक लाइव पर्सन को लेके चली जाएगी, कहता यार पर मैंने तो किसी के लिए कुछ आर्ट बना दी ना, मैंने तो एक किसी की मेमोरीज को, एक पूरी लाइफ टाइम की मेमोरीज को अपने पेन के साथ आर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, विच हैज़ नो एंड, विच इज इमॉर्टल, उसका तो कोई एंड ही नहीं है. So he says that, but ये जो उसने वर्स लिखा है, it has the power to preserve memory forever. वो तो पूरी दुनिया, मतलब पूरा टाइम चलेगा. So his poem will keep the beloved's name and virtues alive long after physical monuments have turned to dust. तो जब तक वो physical monuments, हर चीज it would have converted into ruins, मेरी dust. तो वो बोल रहा है कि उस टाइम पर भी जो मेरी memories हैं beloved की, they will remain alive. So what are the another themes that are included? The power of art and words over mortality. ये जो मौत वगैरह है, mortal चीज़ें हैं, उनके आगे what stands in front of it is art and words. And next is triumph. Triumph is like the victory of love and beauty over time and decay. टाइम जो है वो हर चीज़ को स्लोली एंड स्टेडली जो वो पास होता रहता है, तो चीज़ें खराब होती हैं. बट यहाँ पे टाइम से कौन जीत गया है? हु हैज गॉट इट्स विक्ट्री ओवर टाइम एंड डिके, दैट इज लव एंड ब्यूटी. नेक्स्ट इज द इटर्नल नेचर ऑफ true admiration and affection. Someone you truly admire, someone you have very you're very affectionate about, affectionate for. तो उन चीज़ों के लिए there is no destruction. वो चीज़ें destroy हो ही नहीं सकती. Someone you truly love from the core of your heart, they cannot be destroyed. अब उसको फिर time हो या कोई भी additionally कुछ element आ जाए, it cannot destruct it. So I hope the theme of the poem is clear.
सो यू कैन रिवाइज इट एक बार, आप इसको अपने वर्ड्स में उसके बाद में थोड़ा थोड़ा शफल अप करके लिख सकते हो. वी विल मूव ऑन टू द मैसेज दैट द विलियम शेक्सपियर आवर पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस पोएम, दैट इज that true beauty and love never die when they are captured in art and poetry. So if you want to preserve something, and if you want to preserve the memories of someone very special to you, what you have to do, you have to capture it in art and poetry. अगर आप उसको आर्ट और पोइट्री में चेंज कर दोगे तो वो चीज़ फॉरएवर के लिए प्रिजर्व हो जाएगी. He assures the beloved that while marble statues and grand tombs may crumble, तो वो ये बोल रहा है कि जब एक टाइम आएगा जब बड़े बड़े जो हमारे पास मार्बल के स्टैचूज हैं, बहुत बड़े बड़े टूम्स हमने बनाए हुए हैं किसी की मेमोरी में, किसी की ग्रेव्स हैं वहाँ पे, जब वो क्रम्बल हो जाएगा, जब वो एशेज में, रूइंस में चेंज हो जाएगा ना, तो फिर भी उसका जो वर्स है विल कीप देयर मेमोरी अलाइव टिल द एंडिंग डूम टिल द लास्ट डे ऑफ जजमेंट. वेरी गुड. तो तब तक वो है जो मेमोरीज उसकी अलाइव रहेंगी. चीजें मटीरियलिस्टिक चीजें तो वो रूइंस में चेंज हो जाएंगी, बट समथिंग दैट ही हैज रिटन, जिसमें आर्ट आ गई, वो चीज कभी खत्म नहीं होगी. Through poetry, one can achieve spiritual and emotional immortality. Spiritual related to God, when you are connected to God, and emotional मतलब जिसके साथ you are truly connected with. तो वो आप immortality मतलब अमर हो जाते हो. You achieve that immortality when you are connected, outlasting even death itself. फिर you are not scared of even death. Once you have a good connection with spiritual and emotional immortality, once you have changed into that, then you are not even scared of death. In essence, the poem reminds us that art and love are timeless forces that can conquer oblivion. So ये एक ऐसी forces हैं जो दुनिया के हर evil के आगे आपको save कर लेती हैं. ये चीज़ें कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. वंस यू हैव अटेन्ड दैट, वंस देयर इज आर्ट एंड लव, दे आर द टाइमलेस फैक्टर्स दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड. So I hope the message, the theme, and all the 14 lines of the poem are clear to you. Now we will move on to the question part. The reason that I have included everything in one video is because आपने अभी वो सारी explanation पढ़ी, साथ के साथ आपने message और theme कर लिया, साथ ही में आपने questions कर लिए, तो आपका एक flow बन गया और एक ही flow में आपका पूरा poem complete हो गया. So isn't it like the advantage for you people? So okay, coming to the questions. What will outlive marble and gilded monuments? ऐसी क्या चीज है जो मार्बल्स और मॉन्यूमेंट्स को भी आउटलिव करेगी, उनसे भी ज्यादा लंबे टाइम तक जी लेगी? दैट इज द पोइट्स वर्स, उसकी पावरफुल राइम, राइट? उसने यही बोला था ना दैट ये जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, दे विल बी एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू रूइंस. What will remain forever? That is his powerful verse, his rhyme. What does time's waste? टाइम का वेस्ट क्या है? द डिस्ट्रक्शन विच इज कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम. हम क्या बोलते हैं दैट द टाइम इज सपोज टू हील व्हेनेवर देयर इज अ वुंड, कुछ भी. फिर वो वुंड सिर्फ मैं फिजिकली नहीं बोल रही हूँ, वो इमोशनल वुंड भी हो सकता है व्हेनेवर देयर इज समथिंग. तो इफ समथिंग हैपेंस, इफ देयर इज अ ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट, विद द पैसेज ऑफ टाइम ना वो चीज़ ठीक हो जाती है, कवर हो जाती है, हील हो जाती है. बट कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टाइम के साथ खराब होती रहती हैं, डिस्ट्रक्ट होती रहती हैं. तो यहाँ पे टाइम को उस वे में लिया गया है दैट द टाइम इज द टाइम टार्निशेस थिंग्स. वो टाइम को, चीज़ों को करोड कर देता है, उनको खराब कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है उनको. तो द डिस्ट्रक्शन विच इज कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम. अब यहाँ पे मार्स क्या सिंबलाइज कर रहे थे? हमने पढ़ा था ना, मार्स थे, सॉरी, जो मार्स हैं वो किसके भगवान हैं? वॉर के. सो दे आर known for wars and for destruction. Obviously, जहाँ पे war है वहीं पे destruction है. We know it, we have seen it, है ना? So what does sluggish time mean? Sluggish time is dirty, careless and destructive time, जो हर चीज को खराब कर देता है, किसी भी चीज को नहीं छोड़ता. मतलब अगर टाइम अपने उस dirty रोल में आ जाए तो it spares nothing. फिर वो किसी भी चीज को, there is no escape, right?
Next question, what does the poet say will survive till the ending? No. What is that one thing that will survive till the end of the day, till the earth will last, till the मतलब जो भी लिविंग चीजें हैं वो चलेंगी तब तक? what is that one thing that will last? that is the praise and the memory of his beloved. जो उसकी बिलव्ड की प्रेज है, जो उसने तारीफ की है, जो उसने अपनी अफेक्शन को और अपने लव को शो किया है, दैट विल रिमेन फॉर एवर. नेक्स्ट, what does the poet mean by not marble not the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme? तो उसका क्या मतलब था जब उसने ये चीज मेंशन करी दैट कोई मार्बल या कोई भी मॉन्यूमेंट सर्वाइव नहीं करेगा? ही मेंट दैट हिज पोएम विल लिव लॉन्गर. जो बड़े बड़े, वो बोला, जो बड़े बड़े द ग्रैंड टूम्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ द किंग्स, वो उसकी जो पोम है इट विल लिव लॉन्गर देन दैट. जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स कहता है ये किंग्स ने बिल्ड करवाए हैं, his verse, his art, his work, it will live longer as verses can't be destroyed by time or war. The major destructing factors are, can you people please comment down the major 3 destructing factors? 3 ऐसे factors जो हर चीज को destroy कर देते हैं. We have already studied it, the major 3 factors we have already discussed. Can you please comment it down below? Thank you. By that time, we'll move on to the next question. That is, what is the effect of time on monuments and statues? जो टाइम है उसका मॉन्यूमेंट्स पे और स्टैचूज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? लेट्स सी. सो जो टाइम है वो इंस्क्रिप्शंस को, समथिंग दैट इज रिटन है ना, जैसे कुछ किसी चीज़ के ऊपर कुछ लिख दिया गया है, कोई इंस्क्रिप्शंस हैं, वो उनको ख़त्म कर देता है, इरेज कर देता है, और स्टैचूज को तोड़ देता है, और मॉन्यूमेंट्स को रुइन कर देता है. बट इन सब मटीरियलिस्टिक चीजों के ऊपर उसका इम्पैक्ट है, पोइट्री के ऊपर नहीं है. इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय पोइट्री, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ वर्क ऑफ आर्ट. नेक्स्ट, हाउ डज शेक्सपियर शो द इमॉर्टैलिटी ऑफ हिज वर्स इन द पोएम? सो ही डिक्लेयर्स दैट चाहे टाइम और वॉर वो मटीरियलिस्टिक चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, बट उसका वर्स जो है वो उसके फ्रेंड की, उसकी बिलवड की मेमोरी को हमेशा जिंदा रखेगा. कब तक जिंदा रखेगा? इवन आफ्टर द वर्ल्ड एंड्स, जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती है उसके बाद तक भी. इफ देयर इज एनी जनरेशन या फिर उसके बाद कुछ भी अगर होगा, तो दैट विल स्टिल रिमेंबर हाउ मच द पोएट ही लव्ड हिज बिलव्ड. उसने अपने बिलव्ड को कितना प्यार किया. एवरीवन विल रिमेंबर दैट. Discuss how Shakespeare's poem glorifies the power of poetry over monuments. अब वो ये चीज़ क्यों दिखा रहा है कि तो जो इतने बड़े बड़े monuments हैं ये तो कुछ भी नहीं है. Something that I have written, जो मेरी poetry है, that is much more powerful than that. How come he says that? So in the poem, Shakespeare claims that marble tombs and golden statues which are built by the प्रिंसेस, वो तो टेम्परेरी है. कहता वो तो चीज़ें मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो तो टेम्परेरी हैं. जब जैसे जैसे टाइम है, डिके है, वॉर है, जैसे जैसे ये चीज़ें अपनी एक्ट करना स्टार्ट कर देंगी ना, टाइम बीतेगा, चीज़ें खराब होंगी, टार्निश होंगी, डिके होंगी, या बाय चांस कोई वॉर हो गई, तो वो अपेरेंटली वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, बोल रहा है वहाँ पे. हाउएवर, पर जो उसका पोएटिक वर्स है, समथिंग दैट ही हैज रिटन इज इटर्नल, वो तो हमेशा जिंदा रहेगा. इट विल कीप द मेमोरी एंड प्रेज ऑफ हिज बिलव्ड अलाइव फॉर एवर. ये जो उसने कुछ चीजें लिख दी हैं अपने बिलव्ड के लिए, ये तो हमेशा जिंदा रहेंगी. द पोएट पर्सोनिफाइज टाइम एंड वॉर हियर. अब वो उनको, टाइम को और वॉर को पर्सोनिफाई कर रहा है. ही इज कंपेयरिंग देम टू अ लाइव पर्सन, टू एन एक्चुअल पर्सन, एंड वो ये बोल रहा है कि ये कितने डिस्ट्रक्टिव नेचर के हैं, इनका नेचर कैसा डिस्ट्रक्टिव है. मतलब ही टेंड्स टू टेल अस दैट हाउ दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिंग. वो जहाँ पे जाते हैं अपने साथ डिस्ट्रक्शन लेके जाते हैं, है ना. तो ही सेज बट asserts that his powerful rhyme will survive all such destruction. अब वो यहाँ पे उनकी टॉक्सिसिटी और उनके नेचर के बारे में, डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में मेंशन करने के बाद फिर वो एक छोटी सी चीज़ ये भी मेंशन कर रहा है दैट मुझे क्या, जो मैंने लिख दिया है, समथिंग दैट आई हैव रिटन, जो मेरा वर्क है, जो मेरा आर्ट है, वो तो इन चीज़ों को सर्वाइव कर ही लेगा आराम से. डजंट मैटर, वो तो सर्वाइव करेगा. Thus, Shakespeare, he glorifies the everlasting power of art and poetry over the materialistic
मॉन्यूमेंट्स। तो वो इसीलिए बोलता है दैट दे आर मच मोर लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ द मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज brave the ravages of time. The braves have built, वो उनके बारे में बोल रहा है. Now यहाँ पे I guess we need to add something over here. So basically the poet is asking कि हमें ये describe करना है कि monuments और statues जो हैं वो कैसे कैसे टाइम के ravages होते हैं, मतलब उनके समथिंग दैट इज अगेंस्ट टाइम, वो टाइम के साथ पैरेलल चल रहे हैं, टाइम उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है. इज टाइम देयर फ्रेंड और फो? So statues are made up of strong metals or stones, and they are covered with gold to decorate them and to make them look very attractive and very splendid. बहुत ही प्यारा उनको दिखाने के लिए. The only reason that they have been gilded, covered with gold, is to make them more attractive. So he says उसी तरीके से monuments जो है वो भी marbles के बने हुए हैं. They are designed and polished in such a way that they can protect them for a long time. अब जब वो बोलते हैं ना द मार्बल, जिसके साथ वो जो मार्बल के साथ जो आपका ताजमहल बना हुआ है, दैट मार्बल इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ मेंट टू प्रोटेक्ट द ताजमहल फॉर अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तभी तो वो बहुत जल्दी करोड़ नहीं हो रहा, आज चाहे थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया होगा, बट वो इस मटेरियल से बना हुआ था ताकि ये वो चीज़ें जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो. तो इतने स्ट्रॉन्ग मार्बल से उन्होंने बनाया था. तो इसलिए वो बोल रहा है कि जो स्टैचूज़ हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं, they are protected to brave the ravages of time. ताकि हमें यही दिखाया गया है कि time is their foe, वो उनकी enemy है और उनसे अपने आप को बचाने के लिए they have created themselves in such a way कि उनका नुकसान ना हो. They do not get corroded easily by wind, rain or sunshine. तो कोई भी जो natural factor है वो उनको ज़्यादा affect नहीं करता. Next, what purpose do the statues and monuments serve? A man wants to survive after his death in the form of a statue or a monument. अब जैसे शाहजहां ने मुमताज़ महल के लिए वो क्यों बनवाया? That once she has passed away, तो लोगों को उसके beloved की वो memory सारी उम्र याद रहे, कि वो चीज़ दिखे. Now we people consider it as a symbol of love, a symbol of pure and true love, कि उसने अपनी beloved की memory में ये चीज़ लिख दी है ना. तो वही जो किंग्स हैं उस टाइम वही सोचते थे कि अगर हम अपना स्टैचू बनवा लेंगे, अपना कुछ मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करवा लेंगे, तो पीपल विल रिमेंबर अस फॉरएवर. द रिच एंड पावरफुल पीपल believe that the future generations would remember them. How? By these statues and monuments. Hence, they are built by some people who keep their memories alive for future generations. तो इसीलिए वो लोग बनवाते हैं ताकि उनकी मेमोरीज जो हैं वो आगे आगे कमिंग जनरेशंस को याद रहें. एक्सप्लेन, दिस इज इम्पॉर्टेंट. अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी, द पोएट सेज कि कोई भी एनिमी जो है उसको सक्सेस नहीं मिलेगा अपने बिलव्ड के ऊपर. मतलब देयर इज नो वन हु कैन विन ओवर हिज बिलव्ड, हु कैन विन ओवर द मेमोरीज एंड द ट्रू लव दैट ही हैड फॉर हिज बिलव्ड. जो डेथ और टाइम है, दे फॉरगेट एवरीथिंग एंड दे सीक टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. टाइम एंड डेथ वो किसी को नहीं छोड़ते. देयर इज नो एस्केप फ्रॉम टाइम एंड फ्रॉम डेथ. हाउएवर, बट उसका जो दोस्त है, उसका जो बिलव्ड है, ही हैज एस्केप्ड इट. इट्स लाइक एस्केपिंग द मैट्रिक्स. उसने मैट्रिक्स एस्केप कर दिया. हाउ? बिकॉज इन द बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ आर्ट. उसने आर्ट की हेल्प ली, अपनी फीलिंग्स को, अपनी अफेक्शन को उसमें आर्ट में चेंज करके ही हैज़ केप्ट इट इमॉर्टल. उसने उसको इमॉर्टल में चेंज कर दिया. नेक्स्ट, व्हाई डज द पोएट रेफर टू टाइम एज बीइंग स्लटिश? नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पोएट रेफर्स टू टाइम एज बीइंग स्लटिश क्योंकि एकदम से चेंज कर देता है. जो टाइम है वो एकदम से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेके आता है. समटाइम्स इट्स गुड, समटाइम्स इट्स बैड. तो वो टाइम का लाया हुआ चेंज could be positive also and could be negative also. So he says its habits and behavior are unpredictable. कुछ नहीं पता कब अच्छा हो रहा है कब बुरा हो रहा है. कुछ भी उसमें जो चेंजेस लेके आ रहा है टाइम, वो अनप्रिडिक्टेबल है. we just don't know कि आगे क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट क्या होना है, we just don't know it. It turns favorite circumstances into adverse circumstances. कोई बहुत ही अच्छी भली चलती हुई चीज़ को भी favorite to adverse, एक ऐसे terrible situation में circumstance में convert कर देता है जिसका हम लोग idea भी नहीं लगा सकते. So then he says it neither waits nor cares for anyone. Time को किसी की कोई परवाह नहीं है. Time never stops for anyone.
एंड उसको ये नहीं लगता कि यार इसके अच्छे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन चलने दो, रहने देते हैं, कुछ नहीं करते हैं. टाइम डजंट केयर फॉर एनीवन. इट स्पेयर्स नो वन, किसी को नहीं छोड़ता. Nobody can understand its changing mood, so hence time is considered as sluttish. Time किसी की बात नहीं सुनता, so time is considered as sluttish. Now sluttish here is actually someone जो वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है and out of the way जाके चीजें करता है. Next, describe how the poetry will survive all wars and destruction. So जो poet है, he has a lot of faith in the power of poetry. उसको पोइट्री की पार में इतना ज़्यादा विश्वास है that he mentioned that even the god of war जो मार्स हैं वो भी आके उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. He expresses his sorrow कि how destructive conflicts destroy magnificent sculptures and reduce them to insignificance. कि वो कैसे इतने बढ़िया इतने सुंदर सुंदर sculptures हैं उनको insignificance मतलब ना के बराबर चीज़ों में हम खत्म कर देते हैं. In addition, he is saddened to learn that even significant conflicts, particularly those that arise during a war, particularly वो चीज़ें वो destruction जो एक वॉर के द्वारा स्टार्ट होती है, दे डेवस्टेट मैग्निफिशेंट वर्क्स ऑफ आर्किटेक्चर. अब होता क्या है, whenever there is a bomb blast और whenever there is a war, तो वो ये थोड़े ना देखते हैं कि नहीं यार ये तो बड़ा प्यारा घर है यार, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे बॉम्ब नहीं लगाना या फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना, इस घर को नहीं उड़ाना. दे डोंट केयर अबाउट दैट. तो ये वो जो मैग्निफिकेंट चीज़ें हैं, मैग्निफिशेंट वर्क ऑफ आर्किटेक्ट है, उसको भी ख़त्म कर देते हैं. दे डोंट केयर अबाउट दैट. He is also pleased to say that the words in which he has exalted his dear friend cannot be ruined by the hostilities that Mars and his followers have instigated. तो वो ये बोल रहा है यहाँ पे that the words, he is also pleased, उसको ये चीज़ बोलने में बहुत खुशी हो रही है that जो उसने अपने dear friend के लिए कर दिया है, something that he has done for his dearest friend, something that he some time and effort that he has denoted for his dearest friend, वो तो मार्स की hostilities या फिर उसकी चीज़ों जो मार्स है वो कोई भी एक्शन लेगा या फिर वो एक्चुअल में अपने डिस्ट्रक्टिव नेचर पे आके दिखाएगा, स्टिल वो चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती. सो नो वन हैज़ द पावर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू हिज बिलव्ड. व्हाई? क्योंकि उसने उसको आर्ट की फॉर्म में चेंज कर दिया. You live in this and dwell in lover's eye. अब वो अपने लवर्स की आई में dwell कैसे हो सकता है, कैसे डूब सकता है? He can dwell in lover's eye by living in the memory of his admirers. Now we are the people who will keep him alive, who will keep the memories alive. क्यों? क्योंकि we are the people who have the true love for anyone, for someone or for anyone. तो जब हम ऐसी कोई चीज़ पढ़ के when we start to relate it and when we tend to miss the poet and his beloved, so that is how we keep it alive. ऐसे ही हम उन चीज़ों को alive रखते हैं. He will be immortalized in the verses of the poet. तो वो फिर अमर हो जाता है, immortal हो जाता है. What values are highlighted in the above line? ये जो line है इसमें what are the values that we get to learn? Despite death and enemies, one can be remembered by his good deeds. अब यहाँ पे सिर्फ वो ये बोल रहा है कि अगर डेथ और कुछ ऐसी एनिमीज भी हैं हमारी, स्टिल इफ वी हैव डन सम गुड डीड्स, स्टिल इफ यू आर अ गुड पर्सन, यू विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर. Beautiful words may make one eternal, not sculptures and not monuments. It's not the monuments, it's not the big sculptures, the big statues that make one immortal. अगर आपको एक्चुअल में कोई चीज़ eternally रखनी है तो what is that? It's someone's beautiful words for you. Now अगर किसी ने किसी की तारीफ में 4 वर्ड्स लिख दिए या फिर कुछ ऐसी शायरी वगैरह कर दी, जैसे गुलजार हैं, पुरानी है ना, हमारे बहुत सारे पोइट्स हैं, सो थिंग्स एंड द शायरी दैट द वर्ड्स दैट दे हैव रिटन फॉर देयर बिलव्ड, अब उनके जाने के बाद भी हम उनके बिलव्ड के बारे में सोच के बोलते हैं यार कितने सुंदर होंगे ना वो जिसके बारे में, या कितने अच्छे होंगे वो जिनके बारे में किसी ने इतना सुंदर सुंदर कुछ लिख दिया. So that is what the poet is trying to say here, that beautiful words make one eternal. Pen has a great power than both time and sword. Sword here is for war,
कि मतलब तलवार वॉर के साथ रिलेट करवाया गया है यहाँ पे. Nobody makes himself eternal by wealth and power. तो अगर आपको अपने आप को अमर करना है, eternal करना है, it's not about the wealth and power, but anybody may be remembered by impacting people's heart. All you need to do is make a good positive impact on anyone's heart. अगर आपने किसी का दिल जीत रखा है, if you have made a good positive impact, if you have done something good for anyone, that is how you will be remembered. Your kindness is something that is remembered forever. It's not your money, it's not your wealth, it's not what you vote to that particular function or anything. It's about how kind you were to someone. It's your kindness, right? Next. But you shall shine more bright in these contents. Now, what does he mean by this? You know what is you here? You is the poet's beloved. So here the poet addresses his friend or beloved. वो उनको ये बोल रहा है. He assures that she would survive in his poem after her death. उसकी डेथ के बाद भी उसकी पोम, उसके वर्ड्स जो कि इमॉर्टल हैं, वो उनमें इमॉर्टल हो जाएगी, उनमें जिंदा रहेगी हमेशा. He describes that neither marble, ना तो मार्बल, ना तो गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स जो प्रिंसेस ने बनाए हैं, वो उनसे ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं करेंगे, बट उसकी जो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट पोम है वो सर्वाइव करेगी. There is no one, no particular monument, nothing materialistic that will survive longer than the verses that are written for the poet's beloved. He further says that the name of his beloved will shine more bright in these verses than that of the dust-covered gravestones, ravaged, मतलब खराब हो जाना by the time. So think about it. There is a poetry written on a piece of paper, and एक person ने उस पेपर को प्रिजर्व किया, आगे से आगे जनरेशंस वो पढ़ रही हैं, है ना. तो हमें वर्बली वो चीज़ याद हो रही है. You will watch this video once, you will think about it once, and it will be there in your mind forever. तो आपको उसको बार बार चेरिश करने की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, बट थिंक अबाउट समवन, किसी ने बहुत बड़ा एक टूम बनवाया, उसमें उसने अपनी ग्रेव बनवाई, पर वो ग्रेव स्टोन के ऊपर कोई आ ही नहीं रहा. इट इज़ कवर्ड विद डस्ट, इट इज़ अनस्वेप्ट, वहाँ पे कोई नहीं आता, नो फ्लवर्स, नथिंग. तो वो ये बोल रहा है कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें आर स्टिल पॉइंटलेस, दे आर यूजलेस. जो बड़े बड़े किंग्स ने ये चीज़ें बनवाई हैं, दे आर ऑफ नो यूज़. मतलब इनकी सिग्निफिकेंस मेरी बिलव्ड की मेमोरी की सिग्निफिकेंस के साथ आप कंपेयर करके देखो ना, कौन ज़्यादा आपको एटर्नल और इमॉर्टल साउंड कर रहा है. यू नो इट. सो ही सेज, he shows his faith in his verse and expresses कि मार्बल मॉन्यूमेंट्स और जो गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स हैं वो पोइट के जो फ्रेंड हैं उनको इमॉर्टैलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते. They do not have the power to make someone immortal. इतने बड़े बड़े monuments, they don't have the power to make it immortal. That जो वो काम इतने बड़े बड़े monument नहीं कर पाए जो poet के verses कर देंगे. Something जो पेन में पार है वो बड़े बड़े monuments में भी नहीं है. That is like the main conclusion of it. He tells his beloved कि उसकी poetry के पास ऐसी पार है कि it will be able, उसकी the poetry will be able to withstand the time's destruction and confer immortality. तो वो ये बोल रहे हैं कि मेरे पास मेरे पेन में इतनी पावर है कि मैं जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रक्टिंग फैक्टर्स हैं, मैं उनके साथ लड़ सकता हूँ. आई हैव द पावर टू विदस्टैंड इट, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट. द पोइट नोज दैट टाइम वुड रूट आउट एवरीथिंग कंप्लीटली, कि टाइम सब चीज़ों को खराब कर देगा, बट her sweet memories would keep on living forever in the hearts of future generations. Why? Because she lies immortalized in his poem. अब सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, everything will be converted into ruins, but what will survive? His poet की beloved की memories. Why? क्योंकि उसने उनको immortal कर दिया. How? By writing it, by mentioning her in his words, by mentioning her in his verse. So this was it about today's video. We have covered up sonnet 55, that is not marbles, not the gilded monuments, which was written by William Shakespeare. I hope it is clear to you people.
you still have to answer me वो तीन elements कौन से थे, although I have just mentioned them right now, still I just want to check how actively you people were listening to me. So you need to comment it down below. And I got a few comments in my last video about this particular drama, that is Julius Caesar. So probably the next video will be in that, on that, and there were certain acts. Basically that play is divided into certain acts. Act 1, scene 1, act 2, scene 2, ऐसे divide हो रखे हैं, and it's very like it's a huge play, very lengthy. So what I will do is I'll try to convert it into parts. मैं उसको छोटे छोटे parts में I'll break it and I'll upload the video one by one. So please subscribe to our channel if you haven't. We will be back with another video soon. Thank you.